Now, moving on to the last lecture of this module, which is about the Anti Narcotics Force, ANF, most commonly known as ANF. आज हम ANF को पढ़ेंगे, उसकी functioning पढ़ेंगे, how it operates, how it overlaps with different things, और उसका major काम क्या है, वो किस तरह किन चीज़ों पे फोकस करता है. खैर, the name speaks for itself, narcotics. That is the central point of the ANF. So let's begin. अब ANF के ये जो लोगो है, it has written on it drug free society. ये basically उसका एक मोटो है. It's a motto of the ANF कि उन्होंने पाकिस्तान को drug free बनाना है. The Anti-Narcotics Force is a federal executive bureau of the government of Pakistan tasked with combating the narcotics smuggling and use within Pakistan. कि किस तरह narcotics drugs जो है वो पाकिस्तान के अंदर smuggle होके आते हैं उनको रोकना है और उनकी यूजेज को रोकना है. ANF works under umbrella of Pakistan Army and Ministry of Narcotics Control. इन दोनों के अंडर umbrella के अंदर ये काम करता है. अब विजन क्या है? What is the vision of the ANF? ANF functions through multi-pronged strategy which also focuses on reducing vulnerability through awareness and rehabilitation of addicts. इसका जो काम है वो सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग रोकना नहीं है और सिर्फ उसकी यूजेज पे नहीं फोकस होता या उनको अरेस्ट करना या वट एवर. इट ऑल्सो फोकसेज ऑन रिड्यूसिंग द यूजेज ऑफ ड्रग्स. किस तरह आप अवेयरनेस फैलाओ लोगों में कि अबाउट हाउ बैड ड्रग्स इज. नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो ऑन हाउ अगर कोई एडिक्ट है किस तरह से उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको किस तरह से सोसाइटी का दोबारा हिस्सा बनाना है. मिशन क्या, अभी थोड़ा बोरिंग सा है बट ओके. The mission of the ANF is Pakistan being in the neighborhood of epicenter of the world. Opium and heroin production has become both a transit and a victim state and is facing ever increasing spillover effects. कि पाकिस्तान की पोजीशनिंग इस तरह से है कि इसके इर्द गिर्द ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ओपीएम और हेरोइन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा. अब आपको पता है कि ये एंड ऑफ द मतलब ड्यूरिंग द 1990s ये बहुत बड़ा इशू हो गया था, ये वाला ड्रग्स वाला 80s 90s. तो उस वजह से फिर दिस वाज फॉर्म्ड and its major aim is it's focusing on the fact of Pakistan being a victim of drug trafficking and how Pakistan has become a victim of it, and Pakistani youth and Pakistani people population have become a victim of it due to the spillover effects. Despite persistent and commendable efforts of all stakeholders, illicit trafficking of opium and heroin remains a serious concern. Given the scale and size of the problem, the Pakistan government has put in place stringent measures to contain the flow of illicit drugs. ANF is a principal agency in Pakistan for combating supply and demand reduction of illicit narcotics drugs that enter Pakistan mainly through the long porous border with Afghanistan. The name has been mentioned in the mission statement properly कि हमारे साथ जो मेजर इशू ड्रग्स का हो रहा है वो किस कंट्री की वजह से हो रहा है? अफ़गानिस्तान. वाई? बिकॉज अफ़गानिस्तान के साथ हमारा एक बहुत पोरस बॉर्डर है और बहुत कन्फ्लिक्टिंग बॉर्डर है और आवाम इधर से उधर बहुत आती जाती है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे ये प्रोडक्शन हो रही है वो यहाँ पे स्मगल होके आती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज़ बिकमिंग ड्रग एडिक्ट्स. ओके. Now, what is the difference between major difference between ANF and the other two agencies we discussed previously? अब जो NAB और FIA है उनका एजेंडा ब्रॉड है लेकिन उनकी फंक्शनिंग सिंपल है. ठीक है, बहुत टू द पॉइंट फंक्शनिंग है. आपको पता है NAB का है करप्शन और करप्शन हर तरह से उसने रोकना है. इसी तरह FIA इज जनरल इन्वेस्टिगेशन. अब आपको पता है ANF का जो एजेंडा है वो बहुत नैरो है, ड्रग्स एंड ओनली ड्रग्स. इट इज़ फोकसिंग ऑन ड्रग्स. हाउएवर इसका जो कह ले इसकी हराइजन जो है वो बहुत ब्रॉड है. क्यों? क्योंकि जिस तरह NAB एक ऑटोनमस बॉडी थी, जिस तरह FIA कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इसका वो वाला इसकी वो सिचुएशन नहीं है. इट इज़ नॉट ऑटोनमस, इट इज़ नॉट अंडर वन मिनिस्ट्री. ये एक ऐसा इशू है जो बहुत वास्ट है और इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन वन
इन वन वे, सिंपल एक डायरेक्शन में इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। होता क्या है कि बहुत अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, दे हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर, और उस कोऑपरेशन की नॉट जस्ट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट फोर्सेस, उनका काम करना बहुत ज़रूरी है टू इन ऑर्डर टू fulfill that one objective, which is stopping drug use. This is why I have included this diagram here. अब हाउ डज इट वर्क? फेडरल लेवल पे आपने जब ड्रग्स को रोकना है सो इन्वॉल्व होता है मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, और मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के अंदर आता है एंटी नारकोटिक्स फोर्स, ANF इज हियर and which comes under the Ministry of Narcotics Control. लेकिन this cannot work independently. सिर्फ ये काम नहीं करता, वी हैव ऑल ऑफ दीज अदर पार्ट्स जो कि मिल के काम करते हैं टू फॉर द एंटी ड्रग सेटअप। अब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में फ्रंटियर, कोस्ट गार्ड्स, रेंजर सिंध, रेंजर्स केपी, सॉरी FC KP के, FC बलोचिस्तान, ये सारे डिफरेंट फोर्सेस हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दैट वर्क टुगेदर टू स्टॉप द ड्रग्स। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर द FBR वर्क्स, FBR के अंदर द कस्टम वर्क्स। वाई? बिकॉज कस्टम्स का काम है ना बॉर्डर सिक्योरिटी। इसी तरह कैबिनेट डिवीजन के अंदर क्या आता है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर क्या आता है? मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स। तो देखें किस तरह एक फंक्शन के लिए, ड्रग कंट्रोल के लिए 1 2 3 4 5 different ministries and so many different organizations and forces have to work together to achieve that one purpose. This is what makes the ANF different from the other two agencies we studied. अभी तो फेडरल लेवल पे हो गया, प्रोविंशियल लेवल पे क्या है? प्रोविंशियल लेवल पे who stops drug use? The police plays its role and the excise and taxation department plays its role. अब what is the function of ANF ने ऑफिशियली ही अपने फंक्शंस बताए हुए हैं। नंबर 1, टू इंक्वायर, investigate and prosecute all offenses related or connected with intoxicants, narcotics and precursors. तो इनकी इंक्वायरी, इनकी इन्वेस्टिगेशन और फिर इनकी प्रोसिक्यूशन, जब मिल जाए कोई ऐसा सोर्स या मिल जाए कोई स्मगलर तो उसको प्रोसिक्यूट करना, ये ANF के अंदर आता है। Secondly, trace and freeze the assets. If you find someone who is using drug money, who is a drug lord, who is smuggling drugs, आप जब उसको ट्रेस कर लेते हो तो उसके एसेट्स भी ट्रेस करो और उन एसेट्स को फिर फ्रीज भी करो। कोऑर्डिनेट एलिमिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपी कल्टिवेशन, ये जो कल्टिवेशन होती है इन चीज़ों की, उसको ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना। Provide assistance to other law enforcement agencies and share information with all national and international agencies on drug related matters. वही बात होगी जो मैंने पीछे बताई है कि it cannot work in isolation to control drugs. एक तो it has to work with different लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमारे, मैंने अभी पीछे बाय नेम भी मेंशन किए हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है। वो तो चलो हो गया नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे भी कोऑर्डिनेट करना होता है विद डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है ड्रग माफिया इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट इज़ अ ट्रांसनेशनल क्राइम, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन करता है। अरेंज एंड कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग ऑफ ओन स्टाफ, अपने ही स्टाफ की ट्रेनिंग भी इन्होंने करनी होती है। एंड मेंबर्स ऑफ अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रिलेटेड टू नारकोटिक्स, अगर बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने नारकोटिक्स और ड्रग्स को कंट्रोल करना है, तो ना सिर्फ अपने लोगों को, अपने मेंबर्स को, बल्कि उनको भी इन्होंने ट्रेन करना होता है। Maintain liaison with all international narcotics control authorities and represent Pakistan in conferences and seminars. जिस तरह हमने पीछे बात की थी UNAFEI की, वो भी ट्रेनिंग्स होती हैं। इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने एक कम्युनिकेशन मेंटेन करनी होती है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, और वहाँ से सीख के आना होता है और यहाँ पे अप्लाई करना होता है।
perform any other related functions that may be assigned by the federal government. अब बेशक ये सारा इनका to the point काम है, official काम है, but if the because as this is a federal organization, इनका काम क्या है, इन्होंने अगर आपकी फेडरल गवर्नमेंट इनको कोई और स्पेसिफिक टास्क भी दे, होता तो खैर वो उन्हीं के डोमेन के अंदर है, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा भी दे तो वो काम भी करना इनके लिए ज़रूरी है। अब जो आपकी ANF है, इसकी एक बहुत डिफरेंट सी स्ट्रैटेजी है। व्हाट इज दैट स्ट्रैटेजी? उसको कहते हैं हम स्पीयर स्ट्रैटेजी। अब दिस इज अ वेरी ऑफिशियल टर्म, मेंशन इट इन योर एग्जाम, इट विल लुक गुड, इट शोज कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? स्पीयर, SPEAR, S स्टैंड्स फॉर सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस एक्विजिशन। सबसे पहले इन्होंने सर्वेलेंस करनी है, इन्होंने चीज़ों पे नज़र रखनी है, और दूसरा इन्होंने इंटेलिजेंस एक्वायर करना है, इन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है हर जगह से। सेकेंड इज प्रोएक्टिव प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। इन्होंने क्या करना है? प्रोएक्टिवली इन्होंने प्रिवेंट करना है ड्रग कल्टिवेशन एंड ड्रग यूज। इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, जो इनकी लॉ है, इन्होंने उस लॉ को इन्फोर्स करना है आगे। अलायंसेस, असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, ये वही पीछे जो हमने अभी बात की थी इनके फंक्शंस की, कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरपोल हो गया, नेशनल लेवल पे इन्होंने जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनके साथ, इन्होंने इन सब के साथ कनेक्शन रखना है, इन्होंने अलायंसेस एंड असिस्टेंस देनी है इनको। एंड लास्ट, रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस, जो ड्रग के अंडर इन्फ्लुएंस लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, और उनको लोग जो अभी नहीं इन्फ्लुएंस हुए हुए उनको बताना कि ड्रग्स किस तरह से क्या कहते हैं, देर बैड फॉर यू, अवेयरनेस देनी है उनको। तो इन 5 तरीकों से क्या होता है? दे रिड्यूस थ्रेट, दे डिटर, दे एलिमिनेट ड्रग्स एंड दे रिड्यूस वल्न। इन 5 तरीकों से SPEAR क्या होता है? इवेंचुअली Pakistan becomes a drug-free society. So this is the official strategy given by the ANF to counter the drug trafficking and drug usage in Pakistan and to make Pakistan a drug-free society. So this is the end of this lecture, and it is also the end of this module. I hope you understand how the different organizations work at both national and international level, and how they are different from each other, and how you need to study them. ठीक है, जब आप इनको पढ़ते हो तो आपने किन किन डायमेंशंस को इनको पढ़ना है। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, उनको इशू यही आता है कि जब वो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आती कि हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमने इनका क्या क्या पढ़ना है। तो आई होप with these 5 lectures you people have understood how these 6 organizations work to counter criminal activity and for the law enforcement. So in the next module we'll be studying the different contemporary crimes and where criminology stands today. क्या क्या करंट जो हमारे इश्यूज हैं क्राइम से रिलेटेड, जो आपका बेसिकली सेक्शन 4 है, उनमें जो मेजर चीज़ें हैं हम अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे. सो आई विल सी यू देन. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.